You see, are malnutrition or starving for that inner excelio. Yes. So, and it is not a difficult thing. You just need the right guidance, right guide to put you there, you see. Yeah. And it's very easy. Yes. Yeah, I heard in another interview you shared about if you're you're thirsty, it's simple, you drink, you know? If you're hungry, it's simple, you eat. Yeah. If you're stressed, it's simple, you meditate, you know? But yet Yes. we forget to do this. I get. And breathing is very, very important. I mean, everybody knows without breath we can't exist. Yeah. But we never pay attention to our breath. Yes. If alone we pay little. ये वाला जो लाइन है ना, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। मैं थोड़ा सा इसको फिर पीछे लेके जा रहा हूँ। अभी जो बोल रहे हैं इसको फिर से रिपीट करेंगे, ये बोलते हुए कि आई विल करेक्ट दिस। Simple, you meditate, you know? But Yes. yet we forget to do this. I get. And breathing is very, very important. I mean, everybody knows without breath we can't exist. Yeah. But we never pay attention to our breath. Yes. If alone we pay little bit attention on the breath. I would say this different. If only we pay just a little bit attention on the breath, it can relieve us of so much stress. It can energize our system. You feel more presence of mind. Is very, very important. I mean, everybody knows without breath we can't exist. Yeah. But we never pay attention to our breath. Yes. If alone we pay little bit attention on the breath. I would say this different. If only we pay just a little bit attention on the breath, it can relieve us of so much stress. It can energize our system. You feel more presence of mind. We can achieve a lot. आज मैंने नोटिस किया, पहले बोले इफ अलोन वी पे अटेंशन टू ब्रेथ, बाद में बोले इफ ओनली वी पे अटेंशन टू ब्रेथ। अब इसमें क्या डिफरेंस, कैसे इसको समझा जाए? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कोई। Swamiji, in the beginning when he started, na, that breathing is important. So generally when you hear it for the first time, breathing is important. Then he clarified, saying कि उसके बिना तो life नहीं है. So when the first time when you hear breathing is important, ऐसा लगा अरे ये कोई मतलब ये तो obviously है, ये तो life ही नहीं है. Then he continued the sentence. So then the attention goes on the breathing part. मतलब वो sentence पे attention न जाने पे he did it उल्टा. Only if you're putting little attention on the breath करके उन्होंने start of the sentence what you he emphasized on that and then he continued. मेरी understanding is. ओके, और कोई समझाएगा क्या आपको? पहले बोले इफ अलोन वी पे अटेंशन टू ब्रेथ, फिर बोले लेट मी से दिस डिफरेंटली, इफ ओनली वी पे अ लिटिल बिट अटेंशन टू ब्रेथ। ये वाला जो लाइन था ना, आप थोड़ा ना अभी ठीक है, अभी तुरंत तो सबको शायद नहीं क्लिक करेगा। ये इंटरव्यू छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। पावरफुल इसलिए क्योंकि अगेन पूछने वाला अगर बहुत एक तो क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है और साथ में अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है ना, तो उसका बहुत, मैं इसका लिंक ग्रुप में शेयर करूंगा और ये कितने मिनट पे है मैं बताता हूँ, इसको सुनिएगा। 9 मिनट से आगे, ये 9 से 9:30 के बीच का है। तो क्या टोन कुछ चेंज हुआ उनका, टोन मीनिंग कुछ चेंज किए, मीनिंग जो चेंज किए वो मेरे तो समझ में पकड़ में नहीं आ रहा। हालांकि आज वो शब्दों का डिफरेंस समझ में आया,
लेकिन एसेंस जो है उसका वो नहीं पकड़ में आया, तो पकड़ते हैं, ठीक है ना। स्वामी जी, ऐसे हो सकता है क्या कि जैसे पहले सेंटेंस में उन्होंने बोला था कि ब्रेथ अलोन, तो उन्होंने जो हमारा एग्जिस्टेंस का एक लेवल है ब्रेथ को ही एम्फसाइज किया, और दूसरे सेंटेंस में उन्होंने बोला कि लिटिल बिट अटेंशन ऑन योर ब्रेथ, सो मे बी ही मीन टू से कि इसके आगे भी है breath के। लेट्स सी, विल सी, और आइडियाज आएंगे तो शायद क्लियर होगा। नॉलेज शीट पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तुरंत तो मुझे नहीं लगता सबको क्लिक करेगा। कॉन्टेक्स्ट तो ब्रेथ ही है, संदर्भ तो श्वास ही है, पर मतलब यहाँ पर मेरा एक तो वो समझने वाली बात तो है ही, पर सोचिए थोड़ा सा ट्विस्ट से कितना अंतर पड़ सकता है, गुरुदेव का लेवल ऑफ अवेयरनेस कितना अधिक है और अंडरस्टैंडिंग कितना ज्यादा है। बहुत बार हम कुछ किसी को कुछ बोलते हैं, हमको लगता है हमने तो कुछ गलत बोला नहीं, और पिछले 3-4 नॉलेज सेशन से हमारा यही चल रहा है, नहीं वो जो गुरुदेव ने बोला जब तुम किसी को शुभ कामनाएं देते हो इसका मतलब तुमको ऐसा लगता है उसके जीवन में सब शुभ नहीं है। अब बहुत बार हमको लगता है हमने कुछ बोला ही नहीं गलत, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हमने कुछ गलत ढंग से बोला ही नहीं, पर तुमको कैसे पता? अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसको एक बार मान करके थोड़ा चिंतन तो कर लो। अभी तो गुरुदेव बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन एग्रीड है कि भाई हाँ कुछ तो इसमें है, स्वीकार कर लेते। कोई और बोलता है तो भी तो हम कर ही सकते हैं। एनीवे, नॉलेज शीट कौन सा वाला आज रेखा के पास है क्या? 180। हाँ है स्वामी जी। 180 पढ़ो ना। नॉलेज शीट नंबर 180, तपस्या। प्राय हम तपस्या को निर्धनता या आत्मत्याग समझने की भूल करते हैं। तपस्या यह दोनों ही नहीं है। तप की प्रेरणा परिपक्वता से आती है। यह सामाजिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। प्राय जो व्यक्ति तपस्या करते हैं वे संपन्नता से चिढ़ते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है। इस प्रकार का तप परिपक्वता से नहीं जन्मा। वास्तविक तप तो संपन्नता के प्रति सहनशीलता है और इसमें कोई आक्रोश नहीं है। वास्तव में एक परिपक्व व्यक्ति को उनके प्रति दया होगी जो तप नहीं करते। तप उत्सव के विरुद्ध नहीं है और केवल आडंबर उत्सव नहीं है। उत्सव तो आत्मा में उदित होता है। जिसमें आत्मिक संपन्नता है केवल वही तप कर सकता है। किसी के पास सांसारिक संपन्नता हो सकती है, परंतु यदि उनके आत्मिक निर्धनता है वह न तो उत्सव बना सकते हैं न ही विकसित हो सकते हैं। अभिमान आत्मा की निर्धनता को इंगित करता है। तप झूठे अभिमान से मुक्ति दिलाता है, परंतु तप का घमंड फिर एक अभिमान हो सकता है। तप समृद्धि से आता है और समृद्धि लाता है। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुम कमी अनुभव करो, तुरंत तप आरंभ कर दो। तप न केवल मुक्ति लाता है बल्कि सद्भाव और प्रेम भी बढ़ाता है। जय गुरुदेव। Swamiji, can someone read the English part also? हाँ, किसी के पास है क्या? मेरे पास है, बट कोई और अगर पढ़ सकता है तो पढ़ो, नया वाला इंग्लिश। एक मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास है। पढ़, पढ़ी।
ये वाला लाइन आप लोगों ने रेखा हिंदी में क्या है? सेकंड लाइन है, इट इज ए साइन ऑफ सोशल हेल्थ। ये सामाजिक क्या लिखा है? स्वास्थ्य का प्रतीक है। यार ये तो, मैं तो इसी में अटक गया। बहुत सुंदर दिया है स्वामी जी। हाँ, ये तो मैंने कभी ऐसे, मतलब, इतने बारीकी से बताया है ना उन्होंने, बहुत छोटी छोटी हाँ, बातें, निर्धनता वगैरह। इट इज ए साइन ऑफ सोशल हेल्थ। पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। Knowledge sheet number 180, November 19, 1998, Bangalore Ashram, India. Austerity. Austerity is often mistaken to be poverty or self-denial. It is neither. Austerity comes out of maturity. It is a sign of social health. अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, तो आगे बढ़ के क्या होगा? इसका कौन एक्सप्लेन, इसको कैसे समझाइएगा? इट इज ए साइन ऑफ सोशल हेल्थ। एक बार फिर से रेखा बताओ ना, हिंदी में क्या बोला है? प्रायः हम तपस्या को निर्धनता या आत्मत्याग समझने की भूल करते हैं। तपस्या यह दोनों ही नहीं है, आत्मत्याग और निर्धनता, ऐसे बोल रहे हो। नहीं, वो इट इज ए साइन ऑफ सोशल हेल्थ को हिंदी में क्या बोला? यह सामाजिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। अब बताइए भाई, सामाजिक स्वास्थ्य। जी, इसका मतलब समाज का उत्थान करने का निश्चय या उसके प्रति कार्य। ऐसा लग तो नहीं रहा विजय जी। मतलब ये बोल रहे हैं कि सामाजिक, इसका अर्थ ये है कि समाज जब अच्छे रूप में होता है तब लोग तपस्या करते हैं। इसका मतलब आगे जो लिखा हुआ वो तो नहीं है कि आ, हाँ, वो हो सकता है कि तपस्या, उसके बाद वाला जो लाइन है, एक बार आप इंग्लिश में पढ़िए रेखा, फिर हिंदी में पढ़ना। इट इज अ साइन ऑफ सोशल हेल्थ, उसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे कह रहे हैं आप समझ। Often people who practice austerity are resentful of richness. नेक्स्ट लाइन पढ़िए, This is a very pitiable state. उसके आगे भी। Such austerity is not born out of maturity. True austerity has tolerance for richness and is not resentful. इसको हिंदी में पढ़ो तो देखो। प्रायः जो व्यक्ति तपस्या करते हैं वे संपन्नता से चिढ़ते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है। इस प्रकार का तप परिपक्वता से नहीं जन्मा। वास्तविक में तप तो संपन्नता के प्रति सहनशीलता है और इसमें कोई आक्रोश नहीं है। अब ये मतलब, एक तो अगर गरीबी है, आप गरीब हैं तो तपस्या तो वैसे भी नहीं कर लेंगे। आप गरीब है, नहीं नहीं है, लेकिन आप संपन्नता को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं और इसीलिए आप तपस्या को बढ़ावा देते हैं। वो भी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं प्रौढ़ता ये है जब तपस्या संपन्नता के प्रति इस भाव से आता है कि वो अच्छा है, उसके प्रति सहन। इस कारण से इसको सामाजिक स्वास्थ्य का एक प्रतीक बोलेंगे क्या, सिंबल बोलेंगे क्या? अच्छा, आगे पढ़िए, शायद कुछ खुल जाए। विजय जी, रेखा, आगे दोनों लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर रेखा पढ़ लेंगे। In fact, one who is mature will have pity for one who is not austere. Austerity is not opposed to celebration. Celebration is not just vanity. Celebration dawns in the एक
देखा। वास्तव में एक परिपक्व व्यक्ति को उसके प्रति दया होगी जो तप नहीं करती। तप उत्सव के विरुद्ध नहीं है और केवल आडंबर उत्सव नहीं है। उत्सव तो आत्मा में उदित होता है। पढ़े, आगे पढ़ो, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। रेखा जी आप पढ़िए आगे। हाँ, जिसमें आत्मिक संपन्नता है केवल वही तप कर सकता है। किसी के पास सांसारिक संपन्नता हो सकती है, परंतु यदि उनमें आत्मिक निर्धनता है, वह न तो उत्सव मना सकता है न ही विकसित हो सकता है। इंग्लिश। One only one who is rich in spirit can practice austerity. One may be rich materially, but if he is poor in spirit, he can neither celebrate nor evolve. Vanity indicates poverty of spirit. Austerity brings freedom from the pride of vanity, but taking pride in austerity is again a vanity. हिंदी। अभिमान आत्मा की निर्धनता को इंगित करता है, तब झूठे अभिमान से मुक्ति दिलाता है, परंतु तब का घमंड फिर एक अभिमान है। पढ़ो, आगे पढ़ो। Austerity comes out of abundance and brings abundance. If you feel a lack in any area of life, immediately start austerity. Austerity not only brings freedom, but also nurtures sharing and caring. हाँ रेखा। तप समृद्धि से आता है और समृद्धि लाता है। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुम कमी अनुभव करो, तुरंत तप आरंभ करो। तप न केवल मुक्ति लाता है, बल्कि सद्भाव और प्रेम भी बढ़ाता है। स्वामी जी, स्पेशली जो लास्ट लाइन है कि सद्भाव और प्रेम भी बढ़ाता है, ये पहली लाइन की इट इज अ साइन ऑफ सोशल हेल्थ, उससे रिलेट हो रहा है, उससे कनेक्ट हो रहा है। हाँ, कुछ तो और अधिक हमको। आप कोई कुछ, जुई कुछ बोल रही थी, कहाँ गई? हाँ जुई, हाँ स्वामी जी। कुछ बोल रही थी तुम। नहीं। अच्छा ठीक। कोई भाई, किसी को कुछ बोलना है? Austerity itself means you are happy with what you have in life and contented with what you have. यस, ये तो Not पक्का out है of कि compulsion, but out हाँ, of maturity, right? वो कमी का एहसास नहीं है जीवन में। जिसके पास वही बात हो जाती है ना, जब आपके पास है ही नहीं तो आप क्या तपस्या करिए। आपके पास खाना नहीं है तो उपवास रखने का क्या मतलब है। आपके पास धन नहीं है तो एक दिन गरीबों की तरह जी के आप क्या करिएगा। आपके पास बहुत धन है, आप आश्रम में लिटरली या बैंगलोर में होटल में 5 स्टार में जाके रह सकते हैं, पर आप जाकर के आश्रम में 4 शेयरिंग 6 शेयरिंग 8 शेयरिंग में रहते हैं तो उस बात का मान है। आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर गरीबी में तो क्या आप, ये बात तो पक्की है। स्वामी जी, उसमें ये भी कहा है ना कि आप अगर 5 स्टार होटल छोड़ के आश्रम में रह रहे तो उसका अभिमान नहीं है आपको, वो हाँ, सहजता से ये कर रहे हैं आप, सहज, तो वो तप हुआ। नहीं तो फिर वो घमंड ही हो गया फिर। हाँ, जिसमें आत्मिक स्वामी जी संपन्नता है।
केवल वही तप कर सकता है, एक लाइन बोला है उन्होंने। हाँ हाँ आत्मिक संपन्नता चाहिए। हाँ इसके पास सिर्फ सांसारिक संपन्नता हो सकती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं अटेंड कर सकता। हाँ। राहुल क्या बोल रहे? स्वामी जी, वो वैराग्य वाली बात हो गई ना कि आपको, जैसे 5 स्टार होटल की जो बात हुई थी, है ना? हाँ, तपस्या तो तपस्या तभी कर सकेंगे जब आप में वैराग्य हो। हाँ। पर आप में वैराग्य है, जो जूही ने भी पॉइंट आउट किया, पर आप में वैराग्य है, आप ऐसा बोलते हैं तो वो फिर तपस्या अब नहीं रहा, फिर आप फंस अच्छा। गए। हाँ हाँ। और कोई कुछ बोलिए भाई, ये तो बहुत 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 सुंदर। मेरे विचार से अगर अहम छूट जाएगा तो तपस्या आरंभ होगी जीवन की। तो तो खैर, और उस हिसाब से जैसे वो लिखा है ना, इट इज अ साइन ऑफ सोशल हेल्थ। तो मतलब समाज में तनाव क्यों है? क्योंकि लोगों के बीच में अहम टकरा रहा है। अगर तपस्वी है लोग तो अहम नहीं टकरा रहा, तो सोशल हेल्थ है, समाज हेल्दी है, ये कहने का मतलब हुआ। वो वाला चीज तो मुझे नहीं क्लियर हो रहा, खैर करेंगे एक दो दिन में। और किसी को कुछ? अभी जी तपस्या करते हैं तो आकाश तत्व में फर्क पड़ता है। हाँ, पढ़ता है। तो वो बस आने ही वाला है। हम करते हैं तो 100 लोगों को तो फर्क पड़ता होगा जितना आप बोलते हैं, समझो। तो करना चाहिए, ये तो है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि समाज में आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स बहुत बन रहे हैं, और आगे बढ़ बढ़ टीचर भजन जो गाते हैं, जो सेवा करते हैं, ऑर्गेनाइजर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर, अच्छा हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं, उनके अंदर कमी का एहसास नहीं है, बल्कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत मिला है, और वो इस बहुत कुछ मिला है तो कुछ करना चाहते हैं। हाँ, दिन भर सेवा में लगे हुए हैं, घर से बाहर धूप में, तो तपस्या ही चल रही है। ये ठीक लगता है क्या? हम इसलिए सेवा, ज्ञान और इसके प्रति प्रेरित हुए क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमको प्रकृति ने, गुरु ने बहुत कुछ दिया है, बहुत मिला हमको, और ये चीज अब आगे जानी चाहिए, ऐसा। उसी को एबंडेंस बोलते हैं ना स्वामी जी, हाँ तो उसी हाँ संपन्नता ही हो गई ना फिर ये। हाँ हाँ। तो उसी से वो बढ़ जाता है ना फिर। He has mentioned na Swami ji, rich in spirit. यस यस। हाँ, वही हम हुआ। में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास अगर देखा जाए तो मेटेरियली, सांसारिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर संपन्नता है, हम दिल के बहुत बड़े हैं। स्वामी जी, ये जैसे अभी हुआ कि हम दिल के बहुत बड़े हैं या फिर कमी नहीं है तो वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जब इसी बात का फिर वो घमंड हो गया तो कहानी समाप्त हो गई, फिर वो आपकी फिर तो तपस्या हाँ, नहीं रही। सबका घमंड हो गया। तो फिर वो तपस्या नहीं रही। तो तपस्या नहीं है। तो ये इसलिए गुरुदेव ने बोला कि उनको पता है, हम में से बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं, निकलते बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छा हमारा इंटेंशन है, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन आगे चल के हम उसमें फिर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। करेक्ट करेक्ट। सीमा कुछ बोल रही थी। स्वामी जी, यहाँ तपस्या शब्द से जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अपनी भावनाएं जो हैं, जो ऊपर नीचे होते रहती हैं, उसको एक तरफ करके कमिटमेंट से ही वो चीजें करते रहना कि अब तो मुझे हाँ, करना ही है ऐसा। तो ये correct। तपस्या हुई ना स्वामी जी। वो भी तपस्या हुई कि मैं अपने शरीर,
अपने मन को नहीं देख रहा कि मेरा मन अभी ठीक नहीं है, मेरा शरीर अभी बहुत डाउन, एनर्जी जो भी कम लग रहा है, लेकिन मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये तपस्या है। सही, वो भी एक तपस्या है। और जैसे अभी बात हुई कि ध्यान करने से और लोगों पर भी असर पड़ता है, या तब करते हैं तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है, तो यही चीज हो गया, सामाजिक आरोग्यता तो हुई ये भी फिर। हाँ, सामाजिक अच्छे जब, हाँ, पथ में लोग दुख में आते होंगे, नहीं रहते। क्या ध्यान बोल, भी बहुत बड़ी तपस्या होती है, नहीं? फिर से एक बार आवाज कट गई थी क्या? हाँ हाँ। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग भले ही पथ पर बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनको दुख है, दुख से मुक्ति चाहिए, मुक्ति पाने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। और इसलिए भाई ध्यान तो सबसे बड़ी तपस्या हुई। आप अपना सारा काम धाम छोड़ के बैठे हैं, आसपास की चीजें, हो सकता है आपको बहुत शोरगुल चल रही हो, फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, गर्मी है, फिर भी आप बैठे हैं, तो तपस्या ही हुई। तो तपस्या मैच्योरिटी भी है। हाँ, अब समझ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य की निशानी भी है। यस यस, थोड़ा थोड़ा मेकिंग सेंस। और क्या? हिंदी में वैनिटी को क्या कहा गया है? घमंड, अभिमान। हाँ स्वामी जी, ये भी तो हो सकता है तब परिपक्वता से आता है, मतलब हमारा धैर्य बढ़ रहा है। और जहाँ धैर्य होगा जिस समाज में, वहाँ अपने आप चीजें कम होने लगेंगी, जो दुर्भावनाएं हैं लोगों की वो अपने आप कम होने लगेंगी। ये पॉइंट भी है, हाँ। And Swamiji has explained both the sentences he has said. The austerity comes out of abundance and austerity brings abundance. हाँ, दिल बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, और तपस्या करते हैं तो दिल और बड़ा होता है। स्वामी जी, हाँ, थोड़ा मन में ऐसा विचार आ रहा है कि गुरुदेव जब तपस्या की बात कर रहे हैं, ही इज मेंशनिंग ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब कुछ भी आप मॉडरेशन में करें डिस्पाइट हैविंग एक्सेस। और हम जो तपस्या समझते हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो पेनेंस की बात कर रहे हैं कि भाई, तो ये दो अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग है, ट्रांसलेशन अलग है, अलग डायरेक्शन है, भी लेकिन अलग। जो हम पहले वाला तुमने जो बोला ना, जो हम समझते हैं, वो ऑस्टेरिटी में आएगा, पर वो बहुत अच्छा। छोटी सी बात है। ये हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है, पर फिर भी जितनी जरूरत का है उतना ही लेके वो घमंड ना किया, तो वो तपस्या हुई। हाँ, हमारे पास इतना पैसा है कि हम 4 मंजिला घर बना सकते हैं, पर हम नहीं बनाते क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं जरूरत है, नहीं है। जरूरत हम्म। नहीं। हमारे पास खाने के लिए अभी हम जो भी सारा चीज होटल से मंगा सकते हैं, पर हम घर में हम्म। अपने से तो बनाकर। ये हाँ, स्वामी जी, जब सोच रही थी तब दिमाग में ऐसा आया था कि यूजुअली सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कुछ बहुत पुअर होते हैं, कुछ बहुत अल्ट्रा रिच, कोई सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो टाइटल दिए हुए हैं। तो ये लोग ऐसे जब डिवीजन किए हैं, तो सोशल हेल्थ जब हम पढ़ते थे स्कूलों में और कॉलेजों में, तो ऐसा बोलते थे कि सोशल हेल्थ फॉर अ पर्सन इज डिफरेंट एंड फॉर अ सोसाइटी इज डिफरेंट। सो एज अ पर्सन सोशल हेल्थ आएगा कि आप लोगों से कितने कनेक्शन बना पा रहे हैं, करेक्ट कितना दूसरों के सुख दुख में आप काम आ पा रहे हैं, करेक्ट किसी करेक्ट। के लिए एम्पैथी कितनी दिखा पा रहे हैं। सो सोशली द मोर फ्रेंड्स, द मोर पीपल यू आर हेल्पिंग, यू आर सोशली मोर हेल्दी। हाँ, एंड एज अ सोसाइटी, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अपने पास इतना एक्सेस है, नाउ आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू पीपल हु डोंट हैव इट, सो हाउ मच एज अ सोसाइटी यू आर विलिंग टू गिव।
So I think ultimately it boils down to कि आप देना कितना दे Correct. कितना पा रहे हैं, Correct, correct. whether you have excess or whether you have less, if you have that spirit of giving, then शायद पता नहीं क्या बात अभी है, हम सब में केवल जूही ने पढ़ाई की थी क्या स्कूल और कॉलेज में? हम क्या कर रहे थे सब लोग? सो नाइस जूही, इट मेक्स सेंस। मेरे पास अबंडेंस क्या है, मेरे पास इनसिक्योरिटी नहीं है। अबंडेंस ये नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि जिनके पास, वो इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है, जिनके पास बहुत कुछ है वो भी सिक्योर नहीं फील करते, जबकि हो सकता है उनके 4 पीढ़ी 7 पीढ़ी खा सकती होगी, फिर भी सिक्योरिटी नहीं, इसलिए और गड़बड़ होता है। अबंडेंस ये है कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरा क्या होगा। और जो तुमने अभी बोला ना, वो आप समझ में आ रहा है, अच्छे स्वस्थ, मतलब स्वस्थ समाज की निशानी। पर मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है जो मैंने स्कूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये भी सोचना पड़ रहा है। ओह नाइस, नो? ऑस्टेरिटी से अबंडेंस आता है, अबंडेंस ऑस्टेरिटी को बढ़ाता है। इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं, असुरक्षा नहीं, अपनी चिंता नहीं। ये आज अब हम सबका, परवीन जी दिखी तो थी कहीं, मुझे इस पृथ्वी पर गायब हो गई। होमवर्क का समय है ये। अनु जी के इस पे है वो। तो ये हमारा होमवर्क, इस पे थोड़ा और हम सोच सकते हैं। और वो जो गुरुदेव का वीडियो है, मैं उसका लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, देखिएगा आप लोग। मतलब जो लोग इतना कुछ देख चुके हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और उनको जब गुरुदेव से मिलते हैं, जब वो ध्यान करते हैं, तब उनको पता चलता है कि मैं तो फ्री हो गया, कहाँ अटका हुआ था, इतना कुछ करने पर भी कितना अच्छा और हो गया। कमाल है। तो होमवर्क वही रहा। हाँ अनु, बोलो बोलो, तुम भी बोलो, कुछ तो बोल ही लो। स्वामी जी आप मेरे को कह रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं स्वामी जी, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है, बट वो जो सोशल इकोनॉमी में उसको समझ सकती हूँ, उसके बिना अगर इतना सब कुछ हो, मैं उसको दूसरी तरह से ले रही थी एक्चुअली में, कि अगर इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो उसका क्या फायदा है, सब कोई कुछ भी होते हुए भी। कोई मैं दूसरा पॉइंट से ले रही थी। अनुपमा, एक चीज हमेशा याद रखना, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें अध्यात्म नहीं है। नॉट ए सिंगल पर्सन लैक्स स्पिरिचुअलिटी। इट इज जस्ट दैट वी हैव स्टार्टेड टू लिव स्पिरिचुअलिटी कॉन्शियसली। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की जो डिफिनीशन है ना, अध्यात्म की परिभाषा, समझ है, उसको हमको समझने की बहुत जरूरत है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुश नहीं रहना चाहता, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुखी रहना चाहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता और अस्वस्थ रहना चाहता है। यहाँ जब स्वस्थ हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, और फिर आपके आसपास का सराउंडिंग, नेचुरली सब आ जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का मन शांत होगा, स्थिर होगा, वो दूसरे के लिए कुछ करने के लिए जरूर सोचेगा, कुछ देने का, करने का, समाज को, देश को, पूरी समष्टि के लिए कुछ करने के लिए जरूर सोचेगा। तो है आइदर लैक ऑफ, मतलब एक प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा गलत सही नहीं हुई, उल्टी पलटी हुई है, हमने धारणाएं गलत बना ली है,
उन सब कारणों से स्पिरिचुअलिटी दब जाती है, दब जाएगी पर जाती कहीं नहीं। It's a good assurance, स्वामी जी। Yeah. इसलिए हमको कभी इस बात का भी बहुत ऐसे नहीं सोचना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि हम अध्यात्म पर हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको पथ मिला हुआ है। कल यही चीज ना, कल देर रात को अपने किसी टीचर ने मैसेज किया, तो स्वामी जी वो अनुभव किया है मैंने, जो अनकंडीशनल लव होता है, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा उसने मैसेज किया। मैंने तुरंत तो रिप्लाई नहीं किया, बाद में लेट रिप्लाई किया। स्वामी जी, व्हाट इज द वे टू कम बैक टू द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन एंड अनकंडीशनल लव? दिव्य प्रेम और अनकंडीशनल लव को क्या बोलेंगे? शायद आप लोग बेशर्त प्रेम, बिना शर्त। मतलब वो उसका ये था कि मैंने अनुभव किया है, होता है, पर वो खो गया। कुछ ऐसा मैं कर देन आस्किंग कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है जो करने से ये सब वापस आ जाए, या इस ये हमेशा बना रहे। मैंने तुरंत तो नहीं लिखा, बाद में लिखा। कभी भी किसी प्रश्न के प्रभाव में उत्तर नहीं देना चाहिए। ये बात समझ में आती है क्या? जब आप प्रश्न के प्रभाव में उत्तर देते हैं ना, तो फिर उत्तर बहुत छोटा संकुचित हो जाता है और वो प्रॉपर नहीं भी हो सकता, इफ यू कैन मेक सेंस। मैंने बाद में लिखा, कंसिडर ऑल दोज मोमेंट्स एज ब्लेसिंग्स, ग्रेस। हर उन क्षणों को ना आप स्वयं को मिला हुआ आशीर्वाद समझो और कृपा का एक अंग समझो। इट इज नॉट अर्नड, कैन नॉट बी हैड विद एफर्ट्स बाय डूइंग समथिंग। इसको हम पा नहीं सकते, कुछ करके पाया नहीं जाता ये सब चीज। ये बात पकड़ में आई ना? वो समय समय पे प्रकृति हमको देती है हमको, और वो हमको इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के। पर जब करके पाने के चक्कर में होते हैं ना, वो गड़बड़ा जाता है। कभी कभी मुझे सच में बहुत आश्चर्य होता है कि ये सब समझ कहाँ से आई, कहाँ से इतनी मैच्योरिटी। फिर जवाब एक ही है, बिना गुरुदेव को सुने और नॉलेज डिस्कशन ये चिंतन मनन जो है ना हमारा, निधि ध्यास होता नहीं। कभी हो जाता है, तो चिंतन मनन से निधि ध्यास बहुत आसान, सहज, सरल। स्वामी जी, कभी कभी ऐसे आपने जो ये बात कही, ये मन में ये डर सा कभी कभी आता है कि ओके चलो, हम थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट इसी तरफ स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा बहुत चल रहे हैं गुरुदेव के साथ। तो ये इज लाइक वॉकिंग ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन। तो इसमें हमेशा एक डर सा लगा रहता है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक उदाहरण दे रहा हूँ। रांची के पास एक जगह है, पास में ही है, 15 किलोमीटर। वहाँ काफी सेवा किया था किसी समय, फिर पूजाएं भी हुई, सब भी। सब यंग थे उस समय, यंग है अभी भी, सब अपने पैर पे खड़े हुए, फर्स्ट जनरेशन सब खड़े हुए। सबने मेहनत करके जो भी आज हासिल किया है ना, अपने बदौलत किया। ऐसा नहीं कि पिछली पीढ़ी में माता पिता ने उनको बहुत कुछ दे दिया था ऐसा। तो काफी समय से ना सब अपने अपने लाइफ में, जीवन में बहुत बिजी है, बहुत मतलब बहुत, सुबह से रात, थोड़ा बहुत, कभी एक दिन सत्संग हो जाता है, नवरात्रि पूजाएं होती है, इस तरह से होता है। फिर अभी क्या हुआ, बहुत दिनों से सब साधना ध्यान व्यान नहीं की, मैक्सिमम का छूटा हुआ। श्रावण में पूजा हुई,
तो बोल रहा था कि स्वामी जी ऐसे आंखें बंद होने लगी, आंख खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने बहुत समय से ध्यान ही नहीं किया। तो वो जो है ना, जाएगा ही नहीं। वो जो अंदर में, ऐसे समझो कि वो जो अग्नि जल गई ना, वो अब कभी बुझने वाली नहीं। पहले भी बुझी भी नहीं थी, पहले चिंगारी थी, वो बढ़ गई। अभी वो उसके ऊपर धुआं दिख रहा है, पर वो टिकेगा नहीं। तो जहां फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, और हमारे जब अब क्या होता है, बहुत सारी हमारी धारणाएं, जैसे भारत में है, बाहर भी है, सिर्फ भारत में नहीं है। हम धर्म को अध्यात्म समझने लगते हैं, कर्म कांड को अध्यात्म समझने लगते हैं। तो जब हम वो करते हैं तो हमको लगता है हमने कर लिया। इसीलिए भी बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते। उनको लगता है हम तो सब करते ही हैं, हम तो पूजा पाठ करते ही हैं, हम तो ध्यान करते ही हैं। क्या करते हैं? शिव जी का ध्यान करते हैं। शिव जी कैलाश में बैठे हुए हैं। अब कैसे समझाए आदमी उनको? सारा वो कल्पना करते रहते हैं बैठे बैठे। तो हमारी जो गलत एजुकेशन है, मिसकंसेप्शन है, ये सब भी इसके लिए कारण है। पर अध्यात्म जाता नहीं। उसके ऊपर पड़े हुए बादल जब छटने लगते हैं ना, तो वो चिंगारी दिखने लगती है, और चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। तो एज ए टीचर, एज ए वॉलेंटियर, एज एन ऑर्गेनाइजर, जो भी हम लोग हैं, हमारा काम यही है कि किसी तरह सामने वाले को उस बादल जो पड़ा हुआ है ना, बादलों को हटाने में उसको सहायता करें। तो जैसा मैंने कहा ना, बहुत बार हम समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमको हमारा मन का उतना विकास अभी हुआ नहीं, सूक्ष्मताएं हम पकड़ नहीं पाते, सटलनेस ऑफ थिंग्स। हम में से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ एडवांस कोर्स किया हुआ है। एडवांस कोर्स के एक वीडियो में गुरुदेव ने क्लियर बोला है, ये बहुत बाद में मुझे पकड़ में आया, कि अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, आप दूसरों को फिर इंफीरियर समझेंगे ही समझेंगे। और इस बात को लोगों को पकड़ने और समझने में बहुत टाइम लगता है। और गुरुदेव अपने आप को स्पेशल कभी समझते नहीं। उन्होंने तो ओपनली स्पंद कारिका में बोल ही दिया कि हम तो कॉमन हैं, और हम स्पेशल समझते हैं, स्पेशल समझते हैं। तो कितना सटल सूक्ष्म है ना ये सब। ज्ञान से ना वो सूक्ष्मता ध्यान से सूक्ष्मता बढ़ती है, और ज्ञान से उस सूक्ष्मता को जीने की क्षमता बढ़ती है। मतलब एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं ठीक है कि नहीं, बट मोरलेस एनीवे। तो मैं, अरे राहुल गायब हो गया। राहुल और कन्हैया भैया के देश में आ गया हूँ, अगर पुरानी भाषा में बोले तो। बेगूसराय इन लोगों ने 24 घंटे से कम समय में एक सहज ऑर्गेनाइज कर दिया। इमेजिन, 12 नए लोग और 10 पुराने लोग। सुपर। कल शाम को बात हुई है, और आज शाम, कल देर शाम, और आज कोर्स हो गया। Anyway,